Hello everyone. So we are going to start with class 10th chapter 8 trigonometry. So let's get started. Okay, so first a little theory. So we'll divide mainly in three parts. First the theory with respect to the topic, then we'll do the examples, and then we'll eventually come to the exercise एक एक करके. तो सबसे पहला trigonometry. So trigonometry is nothing but trigon and metron, that is three sides measure. So it is mainly the measurement of three sides. In particular, triangle is what we are talking about, and in our respect we are mainly talking about a right angled triangle, because in this chapter it will be confining towards the acute angles, right? So and in acute angles a right angle triangle is what you will be studying. So mainly trigonometry is the study of the sides of a triangle, sides of a right angle triangle in this case, with the angles of the triangle, the relationship between the sides and the angles of the triangle. Trigonometry, three sides measurement of three sides. Okay, so what trigonometry does, like for example, if this is Qutub Minar and you are standing at a distance, right? Say you know the distance to be 50 meters and you are looking at the top of the tower. So if you know, so see, this is a right angle triangle, right? A, B, C. This length and this length will be the same. So if you know the angle at which you are looking at the top of the tower and this distance, how far you are from the tower, can you find out what is the height of the tower without actually measuring it, right? हम उसको मेजर नहीं कर रहे हैं, कुतुब मीनार की हाइट को हम लोग मेजर नहीं कर रहे हैं, हम बिना उसको मेजर किए सिर्फ इस फैक्ट से कि हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता हो और कितने एंगल पे जो उसका टॉप है वो बन रहा है वो हमको पता हो, क्या हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं. दूसरा, अगर ये एक रिवर पे एक सर्टेन डिस्टेंस पे एक पॉट रखा है, flower pot or anything, and you are sitting at a certain height, right? So if you know the angle at which you're looking at the pot, right, and you know at the height you are sitting, whether it's possible to find out the width of the river, right? So these are some of the examples where trigonometry can be used. यहाँ पे हम trigonometry का इस्तेमाल कर सकते हैं ये पता लगाने के लिए इस केस में इस टावर की हाइट कितनी है और इस केस में इस रिवर की विड्थ कितनी है, बिना एक्चुअली उसको मेजर किए. सो दिस इज़ हाउ trigonometry is useful and how it can be used. अब कुछ मेनली रेशोज हैं जो हम लोग देखेंगे. रेशोज हम लोग रेशोज पढ़ेंगे. तो सबसे पहला है साइन ऑफ एंगल ए. एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं
ABC। ओके, साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है? साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये एंगल है ए है, एंगल ए के अपोजिट वाली साइड कौन सी है? BC। तो ये BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका? AC। तो ये और भी क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। और जो साइड ए के साथ एडजेसेंट होती है, साथ में होती है, वो उसका बेस कहलाती है। तो ये P/H भी कहलाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर आ जाता है आपका कोसाइन ऑफ एंगल ए। दिस इज साइड adjacent to angle A upon hypotenuse। साइड एडजेसेंट कौन सी है? AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, जो कि और भी क्या कहलाएगा? B/H। P/H, B/H। नेक्स्ट इज tangent of angle A, that is side opposite to angle A upon side adjacent to angle A, which will be BC upon EB or P/P. Okay, now next one is cosecant of angle A. This is 1 upon sine of angle A। तो वो हमारा क्या था? P/H, 1 upon P/H or else H/P। अगला है secant of angle A, which is 1 upon cosine of angle A, 1 upon B/H or H/P। Last one is cotangent of angle A, 1 upon tangent of angle A, या फिर 1 upon P/B या फिर B/P। राइट। सो ये आपके कितने हो गए? 6 रेशियोज हो गए। P यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में इनको, साइन A, cos A, tan A, cosec A, sec A और cot A भी कहते हैं। साइन A क्या हो गया आपका? P/H, B/H, P/B। rest is reverse, so H/P, B, H/B, B/P। ओके, सो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। इसमें जो है एक चीज़ और हम लोग नोटिस करेंगे, tan A है, that is P/B, it is nothing but sin A upon cos A। कैसे? sin A क्या है आपका? P/H, cos A क्या है आपका? B/H। H से H कैंसिल आउट होके ये क्या बन गया? P/B। तो इस वजह से tan A को जो है वो sin A अपॉन cos A भी लिखा जा सकता है। ये भी एक आपका
आइडेंटिटी की तरह इस्तेमाल हो सकता है। तो ये जो है बेसिक आइडेंटिटी है। ये 6 साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक, हाइपोटेन्यूज अपॉन perpendicular. So mainly you have to remember these 3 because these 3 are reverse of the top. तो ये शुरू के 3 याद रखनी है, ये 3 तो क्या है, उसी का उलट है, ठीक है। इसके साथ एक रिलेशन जो है 10 का इन दोनों के साथ भी है, tan A is equals to sin A upon cos A. So in short, this is what you have to remember. अभी तक जितना हमने पढ़ा थ्योरी में उसका सारा निष्कर्ष ये है, ये पॉइंट, ये 6 रेशो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, और एक रेशन और 10 का साइन बाय कॉस या फिर p बाय b, जो कि कुछ नहीं होता है, आपका साइन बाय कॉस होता है। तो ये आपकी थ्योरी हो गई। नेक्स्ट विल डू स्टार्ट डूइंग एग्जांपल्स। ओके, सो एग्जांपल 1, गिवन tan A is equals to 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल A। ठीक है, सो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया ABC, ठीक है। नाउ ABC, tan A is equals to 4/3, ठीक है। तो tan A हमको क्या पता है क्या होता है, P/B, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपका 4/3 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस। तो यहाँ पे ये रेशो जो हो सकती है tan A इज इक्वल्स टू 4/3। तो इस परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है, ये तो रेशो आया है, दैट मीन्स कट के इन द एग्जांपल के तौर पे मान लो ये हो जाता 4 × 4 और 3 × 3, 16/12, ठीक है। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल के, ठीक है, ABC, तो परपेंडिकुलर जो है वो आपका 16 है और बेस जो है वो आपका 12 है, फॉर एग्जांपल, राइट। तो हमको पता नहीं है कि लेंथ एक्चुअल क्या है, हमको सिर्फ रेशो दे रखी है। तो रेशो क्या है, 4/3, बिकॉज यहाँ इसको काटोगे तो 4 4s और 4 3s, 4/3 रेशो आएगा, बट यू डू नॉट नो द एक्चुअल लेंथ ऑफ दोज। सो एक पैरामीटर आपको एज्यूम करना पड़ेगा, जो एक कॉमन पैरामीटर दोनों के बीच में है जो कट रहा है, जो मैंने यहाँ इस एग्जाम्पल में 4 लिया है, ठीक है। बट सिंस वी डू नॉट नो इट, सो वी विल बी टेकिंग इट हैज़ 4k/3k, दोनों सेम ही होगा k एंड k, बिकॉज दे विल कैंसल आउट। तो यहाँ से आपको ये आ गया। नाउ हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल A। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हैं वो क्या क्या हैं, साइन A, कॉस A, ठीक है, कॉट A, कोसेक A और सेक A। टोटल 6 होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, और ये आपका ये तो है 6। तो आपको एक तो दे ही रखा है, ठीक है, 5 और निकालने हैं आपको। ना अगर हमको ये थर्ड वैल्यू मिल जाए, ठीक है, तो हम ये बाकी के सारे रेशियोज बता सकते हैं ईजिली। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, हमको क्या पता है, h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे हमको पता नहीं है, h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर, सो दिस विल बी 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, इट विल कम आउट टू बी 25k स्क्वायर। तो h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25k का स्क्वायर
h इक्वल्स टू √25k का स्क्वायर, h इक्वल्स टू 5k प्लस माइनस, ठीक है, बिकॉज 25 इज स्क्वायर रूट 5 का होता है, ठीक है, 5 × 5 25, और k का स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 1 के बाहर आएगा k, रूट से कुछ भी बाहर आता है प्लस माइनस, बट यहाँ पे जो है वो प्लस में ही हम लोग कंसिडर करेंगे वैल्यू, माइनस की नहीं करेंगे, बिकॉज दिस आर ऑल एक्यूट एंगल्स, और ये सारे पॉजिटिव क्वाड्रेंट में होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट। सो यहाँ पे से आपका पॉजिटिव कंसिडर 5k की आपकी h की वैल्यू हो गई। तो अब हम बाकी अगर निकालेंगे तो साइन a इज़ p/h, ठीक है, तो ये आपका p कितना है 4k/5k, तो 4/5, ये आपका साइन हो गया, ठीक है। ऐसे ही cos a इज इक्वल्स टू b/h, b क्या है आपका 3k/5k, 3/5, तो ये आपका cos हो गया, ठीक है। cot जो है वो 1/10 होता है, ठीक है, तो यहाँ कर देते हैं cot a इज इक्वल्स टू 1/10a, तो 10 कितना है आपका 4/3, रिवर्स होके 3/4, ठीक है। cosec a इज 1/sin a, तो साइन कितना है आपका 4/5, रिवर्स होके 5/4, sec a इज 1/cos a, cos कितना है आपका 3/5, रिवर्स होके 5/3, तो ये आपकी 5 वैल्यूज़ साइन है, कॉज है, कॉट है, कोसेक और सेक, ठीक है। तो इस तरह से हमें सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखी थी, उससे हमने बाकी की 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकाल ली यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, और जो हमें रेशोज़ की आइडेंटिटीज़ या रिलेशंस पता है, ठीक है, दैट इज़ साइन जो है वो p/h होता है, कॉस b/h होता है, tan कॉट का रिवर्स होता है, कोसेक साइन का रिवर्स होता है, और सेक जो है वो कॉस का रिवर्स होता है। तो ऐसे हमारा ये इन दो चीज़ों को रिलेशनशिप ऑफ रेशोज़ एंड पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके हमने ये पहला एग्जांपल किया। सो एग्जांपल 2, इफ angle B and angle Q are acute angles such that sin B is equals to sin Q, then prove that angle B is equals to angle Q. Okay? तो हमें दो एंगल्स आपके दे रखे हैं, एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन B इज इक्वल्स टू साइन Q। तो सबसे पहले तो दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं, ठीक है। PQ PQR ABC, ये आपके दो एक्यूट एंगल्स हो गए, ठीक है। Now our acute angle such that sin B is equals to sin Q. So sin B is equals to sin Q. That means sin B p/h. So what is P for this? इस एंगल के अपोजिट वाला इसका परपेंडिकुलर होगा, तो AC अपॉन p/h, AC अपॉन AB, AB। नाउ साइन Q इसके अपोजिट वाला PR अपॉन परपेंडिकुलर PQ, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये मिल गया। अच्छा, अब हम ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? अगर
हमको ये प्रूफ करना है ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर है। ये दोनों ट्रायंगल अगर हम सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूफ कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपके पास ऑलरेडी इस दो ट्रायंगल्स के दो साइड्स का रेशो बराबर दे रखा है, प्रोपोर्शनेट है, ठीक है। आपका AC और PR देखो, AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ, ठीक है। तो AC अपॉन PR, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर, और AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ दोनों हाइपोटेन्यूज, दोनों बराबर है। इसमें अगर इक्वल टू आपका जो थर्ड है क्या रहेगा, बेस BC, ठीक है, अपॉन QR अगर आप कर दोगे तो दोनों ट्रायंगल्स क्या आ जाएंगे, सिमिलर आ जाएंगे। और सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी के हिसाब से इफ़ all the three sides of the triangle are sides of a triangle are proportional to the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the triangles are similar, ठीक है। तो आपने ट्रिपल एस की प्रॉपर्टी से SSS साइड साइड और साइड तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल दिखा दिए, तो SSS ट्रिपल एस की प्रॉपर्टी से आपने ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर दिए। सिमिलर प्रूफ कर दिए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Q, C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल R और A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल P। तो हमें सिर्फ अब यहाँ पे ओवरव्यू में समझ में आ गया कि करना क्या है, हम डेस्टिनेशन तक कैसे पहुँच रहे हैं। तो अब वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास मिसिंग पार्ट क्या है, सिर्फ हमको सिर्फ ये प्रूव करना है दैट दिस BC अपॉन QR इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो हम सबसे पहले BC निकाल लेते हैं अपना, पाइथागोरस थ्योरम से BC, तो H का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर। Okay, so we forgot a square here, here, here and here, ठीक है। तो this now will be BC upon QR, स्क्वायर हटा देते हैं तो ये पूरा जो है वो आपका चला जाएगा K का स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन अंडर रूट PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ठीक है। K बाहर आ गया, अंडर रूट माइनस PR का स्क्वायर ऑन अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, इससे ये कट गया। सो इवेंचुअली व्हाट यू गॉट, BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू K, ठीक है। तो हम शुरू से यही ढूंढ रहे थे, BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू K, BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू इस वैल्यू के बराबर आ गया K। तो आपके ये सारे जो हैं AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR, ठीक है। ये आपका आ गया, दैट इज AC अपॉन PR, AB अपॉन PQ एंड BC अपॉन QR, ठीक है। तो दोनों साइड्स, दोनों ट्रायंगल के तीनों जो साइड्स हैं वो आपस में उनके रेशो जो हैं वो प्रोपोर्शनल हैं, दैट मीन्स दिस टू। सो एग्जांपल 4, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC right angled at B
if tan A is equals to 1, then verify that 2 sin A cos A equals to 1. So right angled triangle, right angled at B, A, B, C. Okay. Tan A is equals to 1. Tan A, this will be the angle, so this is perpendicular, hypotenuse, and this is base. P by B is equals to 1. BC upon AC is equals to 1. BC is equals to AC. Let this be K. ठीक है. BC जो है वो AC, base is AB. BC जो है वो AB के बराबर है. ठीक है. परपेंडिकुलर और बेस जो है वो आपका इक्वल है. It can be 3, 4, 5, 6 anything. We don't know what that value is, so we are putting K. ठीक है. BC equals to AB is equals to K. अब ये दोनों बराबर है. अब 2 sin A cos A equals to 1. So by Pythagoras theorem you have this AC का square is equals to AB का square minus BC का square. ठीक है. So by Pythagoras theorem, hypotenuse का square is equals to perpendicular का square plus base का square. यहाँ पे आपका AC का square is equals to BC का square plus AB का square. AC का square is equals to K square plus K square. AC is equals to under root 2 K square. AC equals to root 2K. So this is your AC. What you have to find out? You have to find out sin A. Sin A is P by H. So P is BC, H is AC, BC is K, AC is root 2 by K, 1 by root 2. Cos A, B by H, AB upon AC, similar 1 upon root 2. What you have to prove is 2 sin A cos A is equals to 1. Put all the values in their places. 2 into 1 upon root 2 into 1 upon root 2 is equals to 1. So 1 is equals to 1. LHS equals to RHS. Okay, hence verified or hence proved. All right. In triangle OPQ, right angled at P, OP is equals to 7 centimeter and OQ minus PQ is equals to 1 centimeter. Determine the value of sin Q and cos Q. So how will we do this is, हमें OQ minus PQ is equals to 1 centimeter दे रखा है. By Pythagoras theorem, H is equals to, so OQ का square is equals to
पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर. Okay, instead of OQ we will write 1 plus PQ का स्क्वायर. ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया, right? OQ, this goes here, so this becomes 1 plus PQ square, so 1 plus PQ का स्क्वायर. Now PQ का स्क्वायर ये आपका 7 का स्क्वायर. सो हेयर 1 का स्क्वायर दैट इज ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, that comes out to be okay. So PQ का स्क्वायर PQ का स्क्वायर कैंसिल आउट्स. ये यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है. प्लस PQ का स्क्वायर माइनस PQ के स्क्वायर से कट गया. दिस इज 2PQ इज इक्वल्स टू 49 माइनस 1. PQ is equals to 48 upon 2. PQ is equals to 24. ठीक है, तो PQ आपका 24 आ गया. What do we have to find out? PQ is 24. This is 24. This was 7 given to us. सिर्फ OQ रह गया. OQ आपका क्या है? 1 plus PQ. So 1 plus 24 25. OQ जो है वो 25 हो गया है. साइन Q, तो P by H, P is this one 7 upon 20. Cos Q, B by H, this will be 24 upon 25. ठीक है, तो ये आपके हो गए 2. एग्जाम्पल नंबर